DY365 ডিজিটেল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা প্ৰসংগৰে উত্তাল ৰাজ্যসভা কংগ্ৰেছৰ সাংসদ ইমৰান প্ৰতাপগড়ৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য আমি শুনিবলৈ পাইছো। মুকলিকৈ সংবিধান উলংঘা কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মিয়া ৰিক্সাৱালাক অত্যাচাৰ কৰাৰ উচতনি দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। গতিকে এআই নেকি বিজেপি চৰকাৰৰ নতুন ভাৰত এনেধৰণে প্ৰশ্ন উত্থাপিত কৰিছে আৰু উত্তাল হৈ পৰিছে। এই মুহূৰ্তত আমি আৰু অধিক তথ্য জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা প্ৰসংগৰে উত্তাল ৰাজ্যসভা কংগ্ৰেছৰ সাংসদ ইমৰান প্ৰতাপগড়ৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য মুকলিকৈ সংবিধান উলংঘা কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। আৰু মিয়া ৰিক্সাৱালাক অত্যাচাৰ কৰাৰ উচতনি দিয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এআই নেকি বিজেপি চৰকাৰৰ নতুন ভাৰত আৰু দীপক কুমাৰৰো প্ৰসংগ আনে সাংসদগৰাকীয়ে। প্ৰেম ভাতৃত্ববোধৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰা দীপক কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে ৰুজু কৰিছে গোচৰ। সংঘাত লগোৱাসকলৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে ৰুজু নকৰে গোচৰ। আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে প্ৰেম ভাতৃত্ববোধৰ উদাহৰণ দিয়াসকলৰ বিৰুদ্ধেহে হস্তম আৰক্ষী। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা প্ৰসংগৰে উত্তাল হৈ পৰিছে ৰাজ্যসভা আৰু বহু বিস্ফোৰক কথা কৈছে, মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে, মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক প্ৰশ্ন সুধিছে। কংগ্ৰেছৰ সাংসদ ইমৰান প্ৰতাপগড়ৰ এই বিস্ফোৰক মন্তব্য আমি শুনিবলৈ পাইছো। বিয়া সন্দৰ্ভত তেওঁ কি কৈছে আমি আপোনালোকক কিছু সময়ৰ পিছতেই জনাম। যিহেতু মুকলিকৈ সংবিধান উলংঘা কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে, এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ প্ৰশ্ন উত্থাপিত কৰিছে যে মিয়া ৰিক্সাৱালাক অত্যাচাৰ কৰাই উচতনি দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এয়া আচলতে বিজেপি চৰকাৰৰ নতুন ভাৰত হয় নেকি? এই প্ৰশ্ন এবাৰ সুধিছে। আৰু আনহাতে সাংসদগৰাকীয়ে বহু কথা কৈছে। দীপক কুমাৰৰো প্ৰসংগ সাংসদগৰাকীয়ে উত্থাপিত কৰিছে। বিজেপিৰ নতুন ভাৰত মানে কি তাক লৈ প্ৰশ্ন সুধিছে। প্ৰেম ভাতৃত্ববোধৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰা দীপক কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে ৰুজু কৰিছে গোচৰ। সংঘাত লগোৱাসকলৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে ৰুজু নকৰে গোচৰ, এনে অভিযোগ এইবাৰ সাংসদগৰাকীৰ। আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে প্ৰেম ভাতৃত্ববোধৰ উদাহৰণ দিয়াসকলৰ বিৰুদ্ধেহে আচলতে হস্তম হৈ পৰিছে আৰক্ষী। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰসংগৰে এতিয়া উত্তাল হৈ পৰিছে এনেদৰে ৰাজ্যসভা। মুকলিকৈ সংবিধান উলংঘা কৰাৰ অভিযোগ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে। গতিকে এয়াই বিজেপিৰ নতুন ভাৰত নেকি বুলি প্ৰশ্ন সোধা হৈছে। কংগ্ৰেছ সাংসদ ইমৰান প্ৰতাপগড়ৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য আমি শুনিবলৈ পাইছো। আমাৰ ওচৰতে বিশেষ মন্তব্য আছে, তেওঁ কি কৈছে শুনাব বিচাৰিছো। है जहां असम का चीफ मिनिस्टर खुलेआम संवैधानिक प्रोटोकॉल तोड़कर कहता है कि मुसलमानों को इतना टॉर्चर करो कि वो राज्य छोड़ने पर मजबूर हो जाएं। वो कहता है कि अगर कोई मियां रिक्शा वाला 5 रुपए मांगो तो उसे 4 रुपए दो ताकि वो परेशान हो सके। ये नया भारत है जहां बरेली में खाली घर में नमाज पढ़ने पर पुलिस मुकदमा दर्ज करती है। ये नया भारत है जहां क्रिसमस की तैयारी करते हुए ईसाइयों पर सरकार मुकदमा दर्ज करती है। ये नया भारत है जहां जम्मू कश्मीर में नीट का एग्जाम क्वालिफाई करने वाले 50 बच्चों में अगर 42 मुसलमान होते हैं तो फिर मेडिकल कॉलेज की मान्यता ही रद्द होती है और जश्न मनाया जाता है। महामहिम को बचाने के लिए खड़ा हुआ दीपक जो मोहब्बतों की रोशनी लेके खड़ा हुआ था, उसके खिलाफ कोटद्वार की पुलिस गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर रही थी। और वो भी उस दिन हो रहा था जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कोटद्वार में मौजूद थे। ये नया भारत है जहां दंगाइयों के खिलाफ एफआईआर नहीं होते बल्कि अमन और मोहब्बत की बात करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होता है। ये नया भारत है जहां असम का चीफ मिनिस्टर खुलेआम संवैधानिक प्रोटोकॉल तोड़कर कहता है कि मुसलमानों को इतना टॉर्चर करो कि वो राज्य छोड़ने पर मजबूर हो जाएं। वो कहता है कि अगर कोई मियां रिक्शा वाला 5 रुपए मांगो तो उसे 4 रुपए दो ताकि वो परेशान हो सके। ये नया भारत है जहां बरेली में खाली घर में नमाज पढ़ने पर पुलिस मुकदमा दर्ज करती है। ये नया भारत है जहां क्रिसमस की तैयारी करते हुए ईसाइयों पर सरकार मुकदमा दर्ज करती है। ये नया भारत है
जहां जम्मू कश्मीर में नीट का एग्जाम क्वालिफाई करने वाले 50 बच्चों में अगर 42 मुसलमान होते हैं तो फिर मेडिकल कॉलेज की मान्यता ही रद्द होती है और जश्न मनाया जाता है। महामहिम को बचाने के लिए खड़ा हुआ दीपक, जो मोहब्बतों की रोशनी लेके खड़ा हुआ था, उसके खिलाफ कोटद्वार की पुलिस गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर रही थी और वो भी उस दिन हो रहा था जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कोटद्वार में मौजूद थे। ये नया भारत है जहां दंगाइयों के खिलाफ एफआईआर नहीं होते बल्कि अमन और मोहब्बत की बात करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होता है। ये नया भारत है जहां असम का चीफ मिनिस्टर खुलेआम संवैधानिक प्रोटोकॉल तोड़कर कहता है कि मुसलमानों को इतना टॉर्चर करो कि वो राज्य छोड़ने पर मजबूर हो जाएं। वो कहता है कि अगर कोई मियां रिक्शा वाला 5 रुपए मांगो तो उसे 4 रुपए दो ताकि वो परेशान हो सके। ये नया भारत है जहां बरेली में खाली घर में नमाज पढ़ने पर पुलिस मुकदमा दर्ज करती है। ये नया भारत है जहां क्रिसमस की तैयारी करते हुए ईसाइयों पर सरकार मुकदमा दर्ज करती है। ये नया भारत है जहां जम्मू कश्मीर में नीट का एग्जाम क्वालिफाई करने वाले 50 बच्चों में अगर 42 मुसलमान होते हैं तो फिर मेडिकल कॉलेज की मान्यता ही रद्द होती है और जश्न मनाया जाता है। महामहिम को बचाने के लिए खड़ा हुआ दीपक, जो मोहब्बतों की रोशनी लेके खड़ा हुआ था, उसके खिलाफ कोटद्वार की पुलिस गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर रही थी और वो भी उस दिन हो रहा था जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कोटद्वार में मौजूद थे। ये नया भारत है जहां दंगाइयों के खिलाफ एफआईआर नहीं होते बल्कि अमन और मोहब्बत की बात करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होता है। ये नया है जहां असम का चीफ मिनिस्टर खुलेआम संवैधानिक प्रोटोकॉल तोड़कर कहता है कि मुसलमानों को इतना टॉर्चर करो कि वो राज्य छोड़ने पर मजबूर हो जाएं। वो कहता है कि अगर कोई मियां रिक्शा वाला 5 रुपए मांगो तो उसे 4 रुपए दो ताकि वो परेशान हो सके। ये नया भारत है जहां बरेली में खाली घर में नमाज पढ़ने पर पुलिस मुकदमा दर्ज करती है। ये नया भारत है जहां क्रिसमस की तैयारी करते हुए ईसाइयों पर सरकार मुकदमा दर्ज करती है। ये नया भारत है जहां जम्मू कश्मीर में नीट का एग्जाम क्वालिफाई करने वाले 50 बच्चों में अगर 42 मुसलमान होते हैं तो फिर मेडिकल कॉलेज की मान्यता ही रद्द होती है और जश्न मनाया जाता है। महामहिम को बचाने के लिए खड़ा हुआ दीपक, जो मोहब्बतों की रोशनी लेके खड़ा हुआ था, उसके खिलाफ कोटद्वार की पुलिस गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर रही थी और वो भी उस दिन हो रहा था जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कोटद्वार में मौजूद थे। ये नया भारत है जहां दंगाइयों के खिलाफ एफआईआर नहीं होते बल्कि अमन और मोहब्बत की बात करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होता है। ये नया भारत है जहां असम का चीफ मिनिस्टर खुलेआम संवैधानिक प्रोटोकॉल तोड़कर कहता है कि मुसलमानों को इतना टॉर्चर करो कि वो राज्य छोड़ने पर मजबूर हो जाएं। वो कहता है कि अगर कोई मियां रिक्शा वाला 5 रुपए मांगो तो उसे 4 रुपए दो ताकि वो परेशान हो सके। ये नया भारत है जहां बरेली में खाली घर में नमाज पढ़ने पर पुलिस मुकदमा दर्ज करती है। ये नया भारत है जहां क्रिसमस की तैयारी करते हुए ईसाइयों पर सरकार मुकदमा दर्ज करती है। ये नया भारत है जहां जम्मू कश्मीर में नीट का एग्जाम क्वालिफाई करने वाले 50 बच्चों में अगर 42 मुसलमान होते हैं तो फिर मेडिकल कॉलेज की मान्यता ही रद्द होती है और जश्न मनाया जाता है। महामहिम को बचाने के लिए खड़ा हुआ दीपक, जो मोहब्बतों की रोशनी लेके खड़ा हुआ था, उसके खिलाफ कोटद्वार की पुलिस गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर रही थी और वो भी उस दिन हो रहा था जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कोटद्वार में मौजूद थे।
ये नया भारत है जहां दंगाइयों के खिलाफ एफआईआर नहीं होते बल्कि अमन और मोहब्बत की बात करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होता है। ये नया भारत है जहां असम का चीफ मिनिस्टर खुलेआम संवैधानिक प्रोटोकॉल तोड़कर कहता है कि मुसलमानों को इतना टॉर्चर करो कि वो राज्य छोड़ने पर मजबूर हो जाएं। वो कहता है कि अगर कोई मियां रिक्शा वाला 5 रुपए मांगो तो उसे 4 रुपए दो ताकि वो परेशान हो सके। ये नया भारत है जहां बरेली में खाली घर में नमाज पढ़ने पर पुलिस मुकदमा दर्ज करती है। ये नया भारत है जहां क्रिसमस की तैयारी करते हुए ईसाइयों पर सरकार मुकदमा दर्ज करती है। ये नया भारत है जहां जम्मू कश्मीर में नीट का एग्जाम क्वालिफाई करने वाले 50 बच्चों में अगर 42 मुसलमान होते हैं तो फिर मेडिकल कॉलेज की मान्यता ही रद्द होती है और जश्न मनाया जाता है। महामहिम को बचाने के लिए खड़ा हुआ दीपक जो मोहब्बतों की रोशनी लेके खड़ा हुआ था, उसके खिलाफ कोटद्वार की पुलिस गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर रही थी और वो भी उस दिन हो रहा था जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कोटद्वार में मौजूद थे। ये नया भारत है जहां दंगाइयों के खिलाफ एफआईआर नहीं होते बल्कि अमन और मोहब्बत की बात करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होता है। ये नया भारत है जहां असम का